Hello student, good morning. Welcome you again in online classes. Student, we have started our new lesson light at our last turn, and we have studied about the law of reflection. Now we will study about the image formation by the plane mirror. So all of us we have to study what are the characteristics of the image formed by the plane mirror. In a plane mirror, the image is formed, that is the virtual and erect. प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है. व्हाट डज मीन ऑफ द वर्चुअल? मीन्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, व्हेन एवर द reflected rays intersect each other actually, then the image will be actual, and if the reflected rays virtually intersect to each other and image is formed, then such type of the image is called the virtual image. And erect means upper side in the image in the mirror, and the below side of the object appear in the below side in the mirror. So this is called the erect image. Second, the size of the image is always equal to the size of the object. जो मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा सेम साइज का होता है. जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उसी साइज का इमेज भी होता है. थर्ड इज द एट द सेम डिस्टेंस इन मिरर. जितनी मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है उतनी ही डिस्टेंस है वो इमेज की मिरर से रहती है. सो इमेज इन द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, विच इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. दोनों की ऑब्जेक्ट की और मिरर की डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है. एंड लास्ट इज द इमेज इज ऑलवेज लेटरल इन्वर्जन. सिंपल जो मिरर है उससे जो इमेज बनता है वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन होता है. लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है आवर लेफ्ट साइड अपीयर in the right side in the mirror and our right side appear in the or at the left side in the mirror. हमारा जो दाहिना पार्ट है वो मिरर में बाईं तरफ दिखाई देता है और हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो मिरर में राइट साइड में दिखाई देता है. सो दिस इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन. स्टूडेंट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द लेटरल इन्वर्जन इमेज बाय द प्लेन मिरर? वी कैन अंडरस्टैंड इट with a very simple activity. For example, if we have taken the P which is made by the cardboard, okay, and if you appear it in front of the mirror and before it this side of the P, suppose this side of the P has the red color and back side of this P has the blue color. Now if we appear it or if we face it in front of the simple mirror, then we can observe here the back side of the P which has the blue color will be faced towards the mirror. So we can see the image of this P in the simple mirror as the blue color, or blue color will be appeared. Means very simple, which face is the front of the mirror, the image will be formed of that particular side of the object. Means इस P का जो बैक साइड में ब्लू कलर है वो मिरर के सामने है तो हमें इमेज भी ब्लू कलर का दिखाई देगा. एंड रेड पार्ट ऑफ दिस P और रेड कलर इज टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ है तो वो हमें दिखाई देता है, इसलिए इमेज है वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा. So in the simple mirror the image is always lateral inversion. Now student, we have studied that the distance of the object from the mirror is always equal to the distance of the object from the mirror. So this is the derivation in our syllabus
means we will prove it that the distance of the image is always equal to the distance of the object in the plane mirror. So student, for this we have this diagram. In this diagram, M dash is the plane mirror, and here P object is placed from this mirror, and from this object P there are the two incident rays which are the P O and P O dash. These are the incident rays which comes from the object P and incident on this plane mirror M dash, and OQ is the reflected rays of the PO, and the just similar O dash Q dash is the reflected rays of the incident ray PO dash. Means यहाँ पर PO की जो reflected rays है वो OQ है, और PO dash की जो reflected rays है वो Q dash है. And on the point of incident O, we draw the perpendicular O, and on the incident point O dash, we draw the perpendicular O dash N dash. And student, according to the laws of the reflection, we have studied that the angle of the incident is always equal to the angle of reflection. So here angle 2 is the incident angle and angle 3 is the reflected angle. So according to this, the angle 2 will be equal to the angle 3. Angle 2 will be equal to the angle 3, and in this manner the angle 1 will be equal to the angle 4, because we have considered here that the angle 1, 2, 3 and 4, these are the linear angle, means एक लाइन पे बने हुए हैं. तो एंगल 2 और 3 जब आपस में इक्वल हैं तो बाय डिफॉल्ट एंगल 1 will be also angle 1 be equal to the angle 4, and here we can observe that angle 4 will be equal to the angle 9. Angle 4 will be to the equal angle 9, because these are the vertically opposite angle. ये दोनों हैं वो vertically opposite angle है, and we have already proved that angle 1 is equal to the angle 4. So we can say here, यदि एंगल 1 4 के इक्वल है और 4 9 के इक्वल है, तो मीन्स ये तीनों एंगल 1 4 और 9 आपस में इक्वल हो गए. सो वी कैन से हियर एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 9. इसलिए यदि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो 1 और 4 इक्वल हैं, और 4 और 9 वर्टिकली अपोजिट हैं, तो एंगल 1 और 9 आपस में इक्वल होंगे. नाउ स्टूडेंट, we have to understand here how can we prove this derivation. For this is our basis, that you have to notice here there is the two triangle. This one triangle P O dash, triangle P O dash, and another triangle is the triangle P dash O dash, P dash O dash. We have to prove that these triangle are the congruent triangle. First we have to prove here that the triangle P O dash and the P dash O dash are the congruent triangle, and another triangle are the triangle P M O dash, triangle P M O dash, and another triangle is the P dash M O dash, P dash M O dash. हमें इन दोनों ट्राइंगल को, हमारे पास में 4 ट्राइंगल हैं, इनमें से ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल है,
इनको हमें कॉन्ग्रुएंसी में शो करनी है, मींस इसको प्रूव करना है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम ट्राइंगल लेते हैं, तो पी ओ ओ डैश एंड पी डैश ओ ओ डैश, ये आपस में किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर हमने देखा कि एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है, 1 और 4 आपस में इक्वल है, 4 9 आपस में इक्वल है, और एंगल 1 और 9 आपस में इक्वल है। सो स्टूडेंट, इन द ट्राइंगल पी एम ओ डैश, इसमें से यदि ये पूरा जो यहां पर एंगल बना हुआ है, ये सारे के सारे मिलकर के मींस एंगल 1 2 3 एंड 4, ये सभी के सभी मिलकर के 180 डिग्री के हैं, बिकॉज दीज आर द लीनियर एंगल्स, मींस एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं, एंड सम ऑफ द लीनियर एंगल्स इज इक्वल टू द 180 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू द 180 डिग्री माइनस एंगल 9, मीन्स इस पूरे 180 डिग्री में से यदि मैं एंगल 1 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में ये पार्ट रहेगा एंगल 2 3 एंड 4, और ऐसे ही मैं नीचे वाले ट्राइंगल की तरफ आता हूं, मीन्स ट्राइंगल पी डैश ओ ओ डैश में यदि मैं 180 डिग्री में से एंगल 9 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में ये वाला एंगल बचेगा। मीन्स यदि 1 और 9 आपस में इक्वल है तो इस ट्राइंगल में ये पूरा कंप्लीट पार्ट और इस ट्राइंगल में ये पूरा कंप्लीट पार्ट है वो आपस में इक्वल होंगे। सो हियर 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू द 180 डिग्री माइनस एंगल 9, एंड अनदर already prove here that if angle 1 or 9 are equal, then here angle 5 and 10 also will be equal. Angle 5 will be equal to the angle 10 because here just similar to the angle 1 और 9, जैसे हमने 1 और 9 को इक्वल प्रूव किया वैसे ही हम 5 और 10 को यहाँ पर इक्वल प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 7 आपस में इक्वल होंगे तो 5 और 8 आपस में इक्वल होंगे, 8 और 10 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं तो 5 और 10 आपस में इक्वल होंगे। नाउ स्टूडेंट, इन बोथ ट्राइंगल्स हियर ओ ओ डैश, ओ ओ डैश इज द कॉमन साइड, ओ ओ डैश is the common side. So student, you have to notice here in both triangle we have proved here that one side is common and two angle, this one the angle P O O dash in above triangle and P dash O O dash in below triangle and another angle 5 and 10 are equal। तो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड है, दो एंगल और एक साइड है वो आपस में इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल के अकॉर्डिंग बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर हैं, और यदि आपस में सिमिलर हैं तो सो वी कैन से हियर दैट साइड पी ओ इज इक्वल टू द पी डैश ओ। इससे हम कह सकते हैं कि यदि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड पी ओ इज इक्वल टू द पी डैश ओ एंड साइड पी ओ डैश इज इक्वल टू द साइड पी डैश ओ डैश। तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, अनदर ट्राइंगल विच आर द पी एम ओ डैश एंड अनदर इज द पी डैश एम ओ डैश। अब हम इन दोनों बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट यहां पर शो करेंगे। सो स्टूडेंट, इन दीज ट्राइंगल्स साइड एम ओ डैश इज द कॉमन। इन दीज ट्राइंगल्स द साइड एम ओ डैश इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल का एक साइड कॉमन हो गया, एंड एंगल 5 and 10 वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड हियर 5 and 10 बोथ आर इक्वल विद ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से इक्वल है, एक साइड हमने कॉमन बता दिया है और एक एंगल हो चुका है,
और ये दोनों साइड हैं ट्राइंगल के, हमने ऑलरेडी इक्वल बता चुके हैं। सो स्टूडेंट नोटिस हियर टू साइड, दिस वन एंड दिस वन कॉमन साइड, और ये दो साइड कॉमन हो, दो साइड इक्वल हो गए इन ट्राइंगल में, और साथ में एक एंगल इक्वल हो गया। तो मींस ट्राइंगल पी एम ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी डैश एम ओ डैश। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है मींस ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये कॉमन साइड हो गया, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मींस दिस साइड विल बी आल्सो इक्वल टू द दिस साइड, एंड वी हैव टू प्रूव दिस। व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द M to P is the distance of the object from the mirror. PM here, PM is the distance of object from mirror, and here P dash M, P dash M is the distance of image. जो P dash M है वो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से, और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट P डैश के ऊपर इंटरसेक्ट होती हैं और यहां पर ही इमेज बनता है। तो ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं है। यदि हम यहां पर देखें तो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूअस, ये डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, तो ये एक्चुअली कहीं पर भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये वर्चुअली इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट P डैश पर। दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज P डैश, एंड दिस डिस्टेंस P डैश M इज द distance of image from the mirror. So यहां पर PM is equal to the P dash M, और यही हमें प्रूव करना था। So student, you have to revise it and learn it, this derivation. Thank you.